is part 2, chapter number 4, human health and diseases. And there is a broadly mentioned table of the human diseases that we have to mention step by step. So human diseases are divided into two categories, congenital diseases and acquired diseases. Congenital diseases are those diseases which are gained by birth, या फिर ऐसे डिजीजेस जो कि जेनेटिकली होते हैं, जो हमें जनरेशन टू जनरेशन आगे जो होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं, दैट आर नोन एज अ कंजेनिटल डिजीजेस. एक्वायर्ड डिजीजेस आर दोज डिजीजेस व्हिच वी हैव टू बी एक्वायर्ड फ्रॉम अदर पर्सन, जो कि हमें उन डिजीजेस को कहां से लेते हैं, दूसरे पर्सन से लेते हैं. Acquired diseases are further of two types, communicable diseases and non-communicable diseases. Communicable diseases वो diseases होते हैं जो कि हमें एक दूसरे के communication के थ्रू मिलते हैं, that are the communicable diseases. And non-communicable diseases are those diseases which are not to be inherited by community, जो कि हमें community से नहीं मिलते हैं. Communicable diseases are further of two types, contagious diseases and non-contagious diseases. Contagious diseases वो होते हैं जो हमें टच करने से ही जो होते हैं वो डिजीजेस प्राप्त हो जाते हैं. Non-contagious diseases वो डिजीजेस होते हैं जो कि हमें एक दूसरे के टच के साथ जो होते हैं वो प्राप्त नहीं होते हैं. Non-communicable diseases are further of different types. Deficiency diseases are those diseases which are acquired from the deficiencies such as vitamin deficiency, protein deficiency, hormonal deficiency, carbohydrate deficiency. Degenerative diseases are those diseases जो कि किस चीज से रिलेटेड होते हैं, जोड़ों के दर्द से रिलेटेड होते हैं. Such diseases are the degenerative disorders. Addiction diseases are those diseases that we have to be addict, such as alcohol. जिन चीजों के हम आदी हो जाते हैं, that diseases are known as the addiction diseases. Allergic diseases होते हैं जो एलर्जी से रिलेटेड होते हैं. Mental disorders are those disorders जो कि हमें कई बार क्या होता है, आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में क्या है कि हर कोई जो है वो मेंटली इतना ग्रस्त हो चुका है कि वो अपने फिजिकली फिटनेस के ऊपर या सोशल फिटनेस के ऊपर, बिहेवियर फिटनेस के ऊपर या मेंटल फिटनेस के ऊपर ध्यान नहीं दे पाता है, और जो हर वक्त तनाव में रहता है. दैट मीन्स दैट डिजीजेस आर रिलेटेड टू द मेंटल disorders. And the last one is the cancer. This is a broadly classified table of the human diseases. And next concept is communicable diseases. Communicable diseases ऊपर भी मैंने कहा वो diseases होते हैं जो कि हमें एक दूसरे के संपर्क में आने से मिलते हैं. That are the communicable diseases. तो communicable diseases either they are direct transmission or by indirect transmission. चाहे वो डायरेक्ट ट्रांसमिशन से हमें प्राप्त हो रहे हैं या इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन से प्राप्त हो रहे हैं, they are known as the communicable diseases. So communicable diseases are first of all caused by protozoans. caused by protozoans. आज जो हम डिस्कस करेंगे communicable diseases में वो हम सिर्फ आज डिस्कस करेंगे caused by protozoans. प्रोटोजोन्स जो हमारे कॉज करते हैं वो करते हैं मलेरिया, फिलेरिया, डेंगू. ऑल दीज डिजीजेस आर कॉज्ड बाय द प्रोटोजोन. सेकंड, कम्युनिकेबल डिजीजेस आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया. थर्ड, कम्युनिकेबल डिजीजेस आर कॉज्ड बाय वायरस. फोर्थ, कम्युनिकेबल डिजीजेस आर कॉज्ड बाय हेलमिंथस. एंड द लास्ट वन इज कॉज्ड बाय फंजाई. So here in detail today we will discuss about the communicable diseases that are caused by the protozoans. Diseases caused by protozoans, number one is malaria. Malaria जो है किससे काटने से होता है? That is caused by the various types of the mosquitoes. तो मॉस्किटो जो है वो जो diseases create करते हैं, मलेरिया की जो लड़ाई है या मलेरिया की जो बीमारी है या उसकी जंग जो है वो उससे हम नहीं जीत सकते हैं. हम इसलिए नहीं जी सकते हैं क्योंकि मलेरिया का जो मच्छर है दैट इज एनोफ्लीज मॉस्किटो. वेरियस टाइप्स ऑफ द मॉस्किटोज आर देयर, एनोफ्लीज मॉस्किटोज, एडीज मॉस्किटोज. तो ये जो मॉस्किटोज हैं ये क्या है, ये किसी भी एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग एडिक्ट होते हैं. रेट ऑफ रिप्रोडक्शन जो होता है वो उनका काफी फास्ट होता है. रेट ऑफ रिप्रोडक्शन इज वेरी फास्ट. दे आर टू बी
सर्वाइव इन एनी ऑफ द एडिक्ट एनवायरमेंट, वो किसी भी एनवायरमेंट में नहीं रह सकते हैं। दैट मीन्स हम जो मलेरिया के अगेंस्ट जो लड़ाई है, जो मच्छरों के प्रति जो हमारी लड़ाई है, उसे हम नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि इनकी जो एक रेट ऑफ रिप्रोडक्शन है वो काफी फास्ट है, और किसी भी ये एडिक्ट एनवायरमेंट जो होते हैं उसमें ये रह लेते हैं। दूसरा गार्डियासिस, थर्ड वन इज द ट्राइपेंसोमियासिस, लेशमियानिसिस एंड ट्राइकोमोनासिस। ऑल दीज डिजीजेस दे आर कॉज्ड बाय द protozoans, but in detail only we will discuss about the malaria. Next concept is the historical aspects regarding the malaria. What are the different views by the different scientists they had to be given for the malaria? So our first historical aspect regarding the malaria is that the word malaria means mal air. मीन्स जो वर्ड है मलेरिया का, उसका जो मीनिंग है दैट इज माल एयर, एंड इन शॉर्टली वी मीन्स टू से दैट फाउल स्मेलिंग एयर। मलेरिया का मतलब ये एक तरह से है फाउल स्मेलिंग एयर, एक गंदी स्मेल जो होती है, जो हवा में होती है, दैट मीन्स मलेरिया। एंड अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट NCERT, that is in 1717, they have to be given the aspect regarding the malaria that was suspected a relationship between the swamp, malaria and mosquito. जो NCERT साइंटिस्ट थे 1717 में, इन्होंने एक सस्पेक्ट किया था रिलेशनशिप किसके बीच में, स्वैम्प के बीच में, मलेरिया के बीच में एंड मॉस्किटो के बीच में। उन्होंने जो एक सर्वे किया, सर्वे के अकॉर्डिंग उनको ये जजमेंट हुई कि अल्टीमेटली देयर इज अ रिलेशनशिप, और रिलेशनशिप किसके बीच में लगा, वो स्वैम्प, जो एक गंदा पानी कीचड़ जो होता है उसके बीच में एक रिलेशनशिप है, मॉस्किटो के बीच में रिलेशनशिप है, और एक मलेरिया के बीच में रिलेशनशिप है। जब उन्होंने इसका एक कंक्लूजन निकाला कि इन तीनों के बीच में कहीं ना कहीं कोई एक सस्पेक्ट एक रिलेशनशिप जो निकल रहा है, दैट मींस वो किसी न किसी बीमारी को जो वो जनरेट कर रहा है। एंड द नेक्स्ट historical aspect is regarding the Lavren, that is in 1880 discovered that malaria is caused by a Protozon parasite. Lavren जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1880 में ये डिस्कवर किया कि जो मलेरिया है दैट इज कॉज्ड बाय द प्रोटोजोन पैरासाइट। उन्होंने एक एस्पेक्ट एक जो था वो डिस्कवर कर लिया था कि जो मलेरिया है वो किस चीज से कॉज होता है, दैट इज कॉज्ड बाय द प्रोटोजोन पैरासाइट। इनफैक्ट अगर हम ये चीज सोचे तो उन्होंने जो था इनफैक्ट ही डिस्कवर्ड द प्लाज्मोडियम, उन्होंने जो था किस चीज को डिस्कवर कर दिया था, प्लाज्मोडियम को। नेक्स्ट अवर हिस्टोरिकल कंसेप्ट इज रिगार्डिंग द साइंटिस्ट नेम्ड रोनाल्ड रोज। In 1897, Sir Roland Rose, a doctor who was born at Almora in India, and he was in Indian Army. Next हमारा हिस्टोरिकल कंसेप्ट जो है वो किस साइंटिस्ट के रिगार्डिंग में है, सर रोनाल्ड रोज के बारे में, जो कि एक डॉक्टर थे एंड ही वाज बोर्न एट अल्मोड़ा इन इंडिया एंड ही वाज इन इंडियन आर्मी। उन्होंने क्या किया था, ही एस्टैब्लिश्ड दैट मलेरियन पैरासाइट इज ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। उन्होंने क्या ट्रांसमिट किया था, उन्होंने ये देखा था कि जो मलेरियन पैरासाइट हो रहा है वो कैसे ट्रांसमिट हो रहा है, बाय द बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। और उन्होंने ये भी चीज डिस्कवर की थी कि ही डिस्कवर्ड oocyst of plasmodium on the stomach wall of the mosquito। और उन्होंने ये भी डिस्कवर किया था कि जो oocyst है प्लाज्मोडियम का, दैट इज ऑन द स्टोमक वॉल ऑफ द मॉस्किटो। नेक्स्ट मलेरियल पैरासाइट जैसे कि हम जान चुके हैं दैट इज प्लाज्मोडियम जो है दैट इज जो हमारा मलेरियल पैरासाइट है, जिसको कि हम जान चुके हैं कि ये प्लाज्मोडियम है। तो जो प्लाज्मोडियम है कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल या रिक्वायर्स इट्स लाइफ साइकिल इन 2 होस्ट। वो अपनी लाइफ साइकिल को जो है वो 2 होस्ट में कंप्लीट करता है। फर्स्ट होस्ट जो है इसका दैट इज द फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो एंड द सेकेंड इज द ह्यूमन बीइंग्स। जो इसका पहला होस्ट है दैट इज द फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो एंड द सेकेंड इज द ह्यूमन बीइंग्स। तो ऐसे होस्ट जो अपनी लाइफ साइकिल को
दो स्टेजेस में कंप्लीट करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, डाइजेनेटिक। क्या कहते हैं उनको, डाइजेनेटिक। जो कि अपनी लाइफ साइकिल को दो स्टेजेस में या दो होस्ट में कंप्लीट करते हैं, दे आर नोन एज द डाइजेनेटिक होस्ट। तो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो एंड ह्यूमन बीइंग्स। फीमेल, अब यहां पर हम ये देखेंगे कि हम ये कह रहे हैं कि जो इनकी लाइफ साइकिल है वो दो होस्ट में कंप्लीट होती है। दैट मीन्स कौन कौन से वो दो होस्ट, प्राइमरी होस्ट एंड द सेकेंड इज द सेकेंडरी होस्ट। सो पहले हम ये लेंगे कि फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटोज जो है, तो अब इसमें हमने ये देखा है कि फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जो है ये जो प्लाज्मोडियम है वो अपनी लाइफ साइकिल को दो फेजेस में कंप्लीट कर रहा है, प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट। प्राइमरी होस्ट वो होते हैं जिसमें कि सेक्सुअल फेज जो होता है या सेक्सुअल फेज की जो तादाद जो होती है वो ज्यादा होती है, उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी होस्ट। दैट मीन्स यहाँ पर मॉस्किटो जो है वो हमारा क्या कहलाएगा, प्राइमरी होस्ट। सेकेंडरी होस्ट वो होता है जो कि जिसमें ए सेक्सुअल फेज होता है, वो क्या कहलाता है, सेकेंडरी होस्ट। दैट मीन्स ह्यूमन बीइंग्स आर द सेकेंडरी होस्ट। तो जो हमारे मॉस्किटोज हैं वो हमने ये कहा कि वो क्या है, हमारे प्राइमरी होस्ट है। तो ये जो होते हैं वो सीरम एल्ब्यूमिन ब्लड, ठीक है, ये एक तरह का प्रोटीन होता है जिस पर ये क्या करते हैं, फीड करते हैं और इनसे क्या होता है, जो इनके एग्स होते हैं, एग्स को फर्टिलाइज करने में जो होता है वो हेल्प करते हैं और इस तरह से इनका जो एक रिप्रोडक्टिव फेज जो होता है वो क्या होता है, वो आगे बढ़ता है और उनके एग्स को फर्टिलाइज करने में जो हेल्प करता है, दैट इज द सीरम एल्ब्यूमिन ब्लड और द प्रोटीन। अब उसमें हम ये कहते हैं कि जो मेल मॉस्किटोज हैं वो ज्यादातर जो होते हैं वो ह्यूमन बीइंग्स को इंजेक्ट ही करते हैं। ज्यादातर तादाद में जो होते हैं वो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जो होते हैं वो ह्यूमन बीइंग्स को इंजेक्ट करते हैं या बाइट करते हैं। तो वो क्यों करते हैं, क्या कारण है? मेल मॉस्किटो जो होते हैं वो ज्यादातर प्लांट जूसेस के ऊपर जो होते हैं वो इंजेक्ट करते हैं, जबकि फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जो होती हैं वो क्या करते हैं, ह्यूमन बीइंग्स को इंजेक्ट करते हैं। तो वो इसलिए इंजेक्ट करते हैं, एक तो जो हम कार्बन डाइऑक्साइड, ह्यूमन बीइंग्स होते हैं जो एक कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, उसकी जो स्मेल होती है वो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो को दूर दूर तक जो होती है वो उसकी स्मेल के थ्रू जो होता है वो ह्यूमन बीइंग्स तक पहुंच जाता है। और जो दूसरा पॉइंट है इसका कि किस वजह से फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जो होते हैं वो ह्यूमन बीइंग्स को इंजेक्ट करते हैं, तो दूसरा कारण जो इसका है वो ये है कि उसका जो बॉडी टेम्परेचर होता है ह्यूमन बीइंग्स का, बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो उसको क्या करता है, आकर्षित करता है मच्छर को उस ह्यूमन बीइंग्स की तरफ खींचने में। और तीसरा पॉइंट जो होता है दैट इज द स्वेट एलोमोन्स, जो उनके स्वेट में, पसीने में जो एक एलोमोन्स के जो एक प्रोटीन्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, वो उसको खींचने में उसकी ओर आकर्षित करते हैं। तो क्या कारण है जिसमें हमारा जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जो होता है वो आकर्षित होता है ह्यूमन बीइंग्स की तरफ, एक्सहेलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा है दैट इज द बॉडी टेम्परेचर and the third one is the sweat that present in the human being, allomone. अब जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटोज है इनके जो माउथ पार्ट्स होते हैं दैट आर पायरसिंग एंड सकिंग टाइप माउथ पार्ट्स that are present in the female anopheles mosquitoes। तो पहला हमारा है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटोज। जैसे कि ऑलरेडी मैंने कहा कि जो सेक्सुअल फेज है वो किसमें होता है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटोज में, और जो ए सेक्सुअल फेज होगा वो किसमें होगा, ह्यूमन बीइंग्स में। तो एज द सेक्सुअल फेज ऑफ द मलेरियल पैरासाइट अकर इन द मॉस्किटो, जैसे कि अभी हमने कहा कि जो सेक्सुअल फेज है दैट अकर्स इन द mosquitoes, malarial parasite occurs in the mosquito and it is considered as the definitive or the primary host। ऐसा सेक्सुअल फेज मलेरियल पैरासाइट का जो किसमें अकर करता है, मॉस्किटो में अकर करता है, उसको हम क्या कहते हैं, इट इज कंसिडर्ड एज द प्राइमरी और द डेफिनेटिव होस्ट।
सेकेंड आर द ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में जैसे मैंने ऊपर कहा कि एसेक्सुअल फेज अकर करता है। एज द एसेक्सुअल फेज ऑफ द malarial parasite occur in the man, it is considered as intermediate or the secondary host. So human beings are, as the asexual phase occurs in the malarial parasite in the man, it is considered as the degenerative or the secondary host. So अगर हम ये देखें तो एज द फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटोज, जो हमारे फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटोज है वो फीड करते हैं आदमी के ब्लड के ऊपर, फीड ऑन द ब्लड, एंड ओनली दे अकर एज द वेक्टर होस्ट ऑफ द मलेरियल पैरासाइट एज वेल एज कैरियर होस्ट ऑफ द मलेरियल पैरासाइट। अगर हम कंसेप्ट देखें तो हमारे पास दो तरह के होस्ट है, क्लिनिकली प्राइमरी होस्ट एंड बायोलॉजिकल प्राइमरी होस्ट। क्लिनिकली प्राइमरी होस्ट कौन से होंगे हमारे, वो जो है क्लिनिकली प्राइमरी होस्ट जो है दैट इज मॉस्किटो, एंड क्लिनिकली प्राइमरी होस्ट आर द ह्यूमन बींग्स। एंड अब हम क्लिनिकली प्राइमरी होस्ट ह्यूमन बींग्स को क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो प्राइमरी होस्ट है क्लिनिकली वो एक ह्यूमन बींग है। ह्यूमन बींग क्यों है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो है वो क्या हो रहा है, वो इंजेक्ट हो रहा है। जब उसको मॉस्किटो काट रहा है तो उससे जो बीमारी से जो ग्रस्त हो रहा है वो कौन हो रहा है, वो ह्यूमन बीइंग्स हो रहा है। मलेरिया की जो बीमारी हो रही है वो किसको हो रही है, ह्यूमन बीइंग्स को हो रही है। बुखार जो आ रहा है वो किसको आ रहा है, ह्यूमन बीइंग्स को आ रहा है। दैट इज क्लिनिकली अगर प्राइमरी होस्ट हम देखें तो दैट इज द ह्यूमन बीइंग्स, एंड बायोलॉजिकली प्राइमरी होस्ट जो है दैट इज द मॉस्किटो। तो यहां पर जो है क्वेश्चन जो है वो रेज हो सकता है कि व्हाई क्लिनिकली प्राइमरी होस्ट, सो व्हाई ह्यूमन बीइंग्स आर कंसीडर्ड एज द क्लिनिकली प्राइमरी होस्ट एंड व्हाई। सो आंसर जो हमारे यहाँ पर है कि हम क्लिनिकली ह्यूमन बीइंग्स को प्राइमरी होस्ट क्यों कंसीडर करते हैं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं वो जो है वो सफर करते हैं उस बीमारी से। मॉस्किटो जो होता है वो बाइट करने के बाद जो होता है तो कौन उससे ग्रस्त होता है उस बीमारी से, ह्यूमन बीइंग्स होते हैं। जो मलेरिया है वो किसको होता है, ह्यूमन बीइंग्स को होता है। बुखार जो आता है वो किसको आता है, ह्यूमन बीइंग्स को आता है। और बायोलॉजिकली अगर हम देखें कि प्राइमरी होस्ट कौन है, तो बायोलॉजिकली जो प्राइमरी होस्ट होता है वो किसके ऊपर फीड करता है, किसके ऊपर अटैक आता है, ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द क्लिनिकली प्राइमरी होस्ट एंड द सेकेंडरी प्राइमरी बायोलॉजिकली प्राइमरी होस्ट। नेक्स्ट, स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल इन ह्यूमंस, प्लाज्मोडियम। The stages of life cycle in the humans are divided into two hosts, that is the mosquito host and the human host. And this is the diagrammatically representation of the stages of the life cycle in the humans as well as plasmodium. The infective stage of the plasmodium is called as the sporozoite. The infective stage of the plasmodium is called as the sporozoite. When the mosquito bites human, it releases saliva in the blood. It releases saliva in the blood. When the mosquito bites human, it releases saliva in the human blood. And with this sporozoite, parasites reach through the blood into the person's liver. After that, the parasites reproduce asexually in the liver cells. जैसे ही हमारा स्पोरोजॉइट जो है वो ब्लड के थ्रू होता हुआ पर्सन्स के लीवर में पहुंच जाएगा, तो जो पैरासाइट है दैट मीन्स दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन द लीवर सेल्स। और जैसे ही वो रिप्रोड्यूस करेगा एसेक्सुअली लीवर सेल्स में, दैट मीन्स जो सेल्स होंगे वो बस्ट कर जाएंगे, वो फट जाएंगे, बस्टिंग ऑफ द सेल्स एंड रिलीजिंग पैरासाइट इन द ब्लड। आफ्टर दैट पैरासाइट्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन द रेड ब्लड सेल्स। जो पैरासाइट्स होंगे वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे ब्लड सेल्स में, फिर रेड ब्लड सेल्स को वो क्या करेंगे, बस्ट करेंगे एंड कॉजिंग साइकिल्स ऑफ लीवर। जैसे ही हमारे रेड ब्लड सेल्स होंगे वो बस्ट होंगे, टूटना शुरू हो जाएंगे, तो वहां पर जो साइकिल है वो किस चीज का बनना शुरू हो जाएगा, फीवर का साइकिल बनना शुरू हो जाएगा। एंड अदर सिम्टम्स, रिलीज पैरासाइट इन्फेक्ट न्यू रेड ब्लड सेल्स। तो जो पैरासाइट्स हमारे रिलीज होंगे वो इन्फेक्ट करेंगे और उसकी जगह पर नए रेड ब्लड सेल्स जो होंगे वो बनना
शुरू हो जाएंगे। दिस इज द डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन। जो इन्फेक्टिव स्टेज होगी स्पोरोजोइट की उसको हम क्या कहते हैं, सॉरी प्लाज्मोडियम की, दैट इज कॉल्ड एज द स्पोरोजोइट। अब जो हमारे स्पोरोजोइट रिप्रोड्यूस करेंगे एसेक्सुअली उसको हम करेंगे स्काइजोगोनी, और जो हमारे स्पोरोजोइट्स रिप्रोड्यूस करेंगे सेक्सुअली they are known as sporogony, and the infective stage of the plasmodium is called as the tropozoite, that is known as the tropozoite. अब ये पैरासाइट जो होंगे वो क्या करेंगे, पैरासाइट्स ब्रेक्स द हीमोग्लोबिन। अब पैरासाइट जो होंगे वो क्या करेंगे, हीमोग्लोबिन को ब्रेक कर देंगे। अब हीमोग्लोबिन को जो ब्रेक करेंगे वो किसमें करेंगे, H हीम प्लस ग्लोबिन। ग्लोबिन इज द प्रोटीन पार्ट, globin is the protein part and that is utilized, whereas hemi is the iron containing part, and that is deposited in the form of hemozoin, and this stage is known as the Schaffner's dot structure, जिसको कि हम क्या कहेंगे, Schaffner's dot structure, and this is sexually stages develop in the red blood cells. जो sexually stages होंगे, that is gametocytes, both male and female, they are developed in the red blood cells. After the sexually transmission of the male and the female, that means they forms the gametocytes, and after the formation of the gametocytes, there is a fertilization and development take place in the mosquito's intestine. Fertilization जो होगा that will take place and development will also take place in the mosquito's intestine, and this is the female anopheles mosquitoes that taken up the gametocytes with the red blood cells. After that, there is the mature infective stages escape from the mosquito salivary glands. There is sporozoites and there is also a salivary glands. After that, when the mosquito bites another human beings, sporozoites are injected with the bite. So this is the stages of the life cycle in the humans as well as plasmodium. And after successful feeding, the parasites reproduce asexually. जब उनकी successful feeding हो जाएगी तो उसके बाद जो parasites होंगे, they reproduce asexually and a large number of merozytes are formed and they are arranged just like the petals of the flower. वो किसकी तरह से arrange होंगे, just like as petals of the flower. After feeding, the parasites reproduce asexually and a large number of merozoites are formed and they are arranged just like the petals of the flowers. So RBC burst and parasites are released into the blood. और वैसे RBC जो होंगे वो आपके burst हो जाएंगे and parasites are released into the blood and causing the fever and cycles of fever.